السلام علیکم، میں آپ کا میزبان، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست سید علی نقوی، اور پوڈ کاسٹ کی آج کے نشست پہ ہم کچھ ہٹ کے بات کرنے والے ہیں۔ میں بات کرنے والا ہوں آج ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے حوالے سے، اور پاکستان میں موجود کیپٹل آف پاکستان میں ایک نیا بہترین اضافہ ہوا ہے، ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا رقبہ سامنے آیا نکھر کے، جس میں اگر انویسٹمنٹ کی جائے تو بہت سارا پروفٹ ان فیوچر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ایکسپرٹ جناب محمد احسن ملک صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اسلام آباد کی جو مین لوکیشن ہے ڈپلومیٹک انکلیو، پارک روڈ، کامسیٹ یونیورسٹیز، اس کے علاوہ دیگر وہاں پر موجود کمرشل ایریا سے بڑی قریب اور بڑے جو ہے وہ کم ڈسٹینس پہ واقع اس سوسائٹی کے مارگلا انکلیو کی میں بات کر رہا ہوں۔ سر آپ بتائیے گا، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ، اس کا تو بغور جائزہ بھی لیا ہوگا، اس وقت مارگلا انکلیو کو آپ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی تجزیاتی نگاہ مارگلا انکلیو کا کیسے احاطہ کر رہی ہے؟ فرسٹ ٹائم اسلام آباد میں ایک اچھا پروجیکٹ آ رہا ہے، اور اچھا اس سینس میں ہے کہ دو اتھارٹیز میں یہ مرجر ہے۔ ایک کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA، وہ خود ایک برانڈ ہے، اور DHA بھی ایک بہت بڑا برانڈ ہے، دونوں کا یہ مرجر ہے۔ اور CDA کی جو لوکیلٹیز یا جو سیکٹرز ہیں سراؤنڈنگ میں، اگر آپ ان کی پرائسز کو دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ DHA مارگلا انکلیو جو لانچ ہوا ہے ان پرائسز پہ، اور اسپیشلی ابھی جو جس کی انہوں نے اپلیکیشن مانگی ہے 3 نومبر جس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، وہ اچھے کمپیٹیٹیو ریٹس ہیں۔ لوگوں میں اس میں تھوڑا سا تجسس ہے کہ شاید یہ مہنگا ہے کہ ایز کمپیئر ٹو جو سراؤنڈنگ میں سوسائٹیز ہیں، بٹ جب آپ اس CDA اور DHA کے مرجر کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ ایکسپینسو نہیں ہے۔ آپ جب ہائی اینڈ لیونگ پہ، ہائی اینڈ آپ کہہ لیں چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ ریٹ ریزنیبل بھی لگے گا اور لوکیلٹی بھی اچھی لگے گی۔ اچھا، اس کی اگر ایمینٹیز کی بات کرتے ہیں جو موجودہ اس کے اندر فیسیلیٹیشن کیا مل سکتی ہے جو انویسٹر آ رہے ہیں، مطلب اس کے لیے سب سے پہلی اٹریکٹیو چیز یہی ہوتی ہے کہ ہمیں اس میں ملنے کیا بات ہے؟ اچھا، دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک ہے اینڈ یوزر جس نے گھر بنا کے رہنا ہے۔ سپوزلی اگر ایک پلاٹ لے رہا ہے تو اس کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی پرائس کیا ہے، اس نے تو پلاٹ لے رہا ہے، اس نے گھر بنانا ہے اور 10 20 25 30 سال اپنی زندگی کے گزارنے۔ ہاں، اتنی سیٹسفیکشن ضرور ہوگی اس کو کہ شاید میرا کیپٹل گرو کرتا جا رہا ہے، میرے ایسٹ کی ویلیو بڑھ رہی ہے۔ جو انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے پلس پوائنٹ یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3 سالوں میں جو بجٹ پیش ہوتے رہے ریئل اسٹیٹ کے، یہ بجٹ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے پازیٹیو رہا۔ پہلی دفعہ گورنمنٹ نے ریئل اسٹیٹ کو ریلیف دیا ایز کمپیئر ٹو پریویس 3 ایئر، تو اس کا امپیکٹ لوگوں کو آہستہ آہستہ ابھی اس کی سمجھ آ رہی ہے۔ پہلے لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ شاید نان فائلر پراپرٹی بائی نہیں کر سکتا، اور جو فائلر ہے اس کو کوئی NOC ریکوائرڈ ہے فرام دی کمشنر۔ تو اب وہ جیسے جیسے چیزیں اوپن اپ ہو رہی ہیں تو اس میں بجٹ کے ثمرات آنا شروع ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا پورا امپیکٹ آ گیا، بٹ ساتھ آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا پاکستان ایک ہیپننگ ملک ہے، ہر روز ایک نئی ایک سٹوری آ جاتی ہے یہاں پہ، بٹ اسٹل مارگلا انکلیو از اے ویری گڈ انویسٹمنٹ، لوگوں کو اپلائی کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں جن کے پلاٹ نکلیں گے وہ خوش قسمت ہوں گے، اور جس نے گھر بنانا ہے میں نے جیسے کہا اس کو تو فرق ہی نہیں پڑتا، اور جو انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے لے رہا ہے وہ اچھا پروفٹ گین کرے گا۔ پروفٹ ان فیوچر کنفرم ہے انشاءاللہ۔ اکارڈنگ ریئل اسٹیٹ کبھی بھی نقصان نہیں دیتی، ٹھیک ہے؟ ٹائم میٹر کرتا ہے کہ آپ اس کتنے ٹائم میں اس سے لے سکتے ہیں۔ اٹ ڈیپینڈز لوکیشن لوکیشن اکثر ہی جو اس کا دورانیہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ لوکیشن تو اٹ سیلف، جب آپ نے CDA کا نام لے لیا، DHA کا نام لے لیا، پارک روڈ کا نام لے لیا، اس کے ساتھ سری نگر ہائی وے سے اس کی اپروچ ہے، NIH کے ساتھ آپ مین اسلام آباد جو ہے اس سے اگر 5-7 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر ہے تو وچ از نتھنگ۔ ایسا ملک صاحب، پارک روڈ چونکہ ایک بڑا نیولی ریسنٹلی ڈیولپنگ ایک روڈ سائڈ ایریا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں یونیورسٹیز بھی بن رہی ہیں، میڈیا ہاؤسز بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑا ایک طویل وہ ایریا ہے، اور اس میں دن بدن ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ مزید ان فیوچر مستقبل قریب میں، مستقبل بعید میں پارک روڈ پر سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہوا پروجیکٹ کون سا دیکھ رہے ہیں؟
डीएचए मार्कला एनक्लेव है और इसका आप ये कह लें सेकंड पार्ट मार्कला ऑर्चर्ड डीएचए ऑर्चर्ड आएगा और कॉमसेट के जस्ट ऑपोजिट है। वो अगेन मतलब एक कमर्शियल हब आप कह लें, जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कमर्शियल हैं दुनिया में, वो उस लेवल पे उसको प्लान किया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ बड़ी हैपनिंग होगी वो जगह और एक सेंटर ऑफ द पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी भी आपकी सराउंडिंग में काफ़ी लोकेलिटीज़ हैं, पॉपुलेशन है वहाँ पे, तो एक अच्छा लोगों को ब्लेंड मिलेगा यहाँ पे रहने के लिए भी और गेटेड कम्युनिटी होगी। डीएचए का नाम वैसे ही आपको पता है, लोगों का ट्रस्ट भी है, कंफर्टेबल भी फील करते हैं, तो डेवलपर भी बहुत अच्छा है, डिलीवरी भी बहुत अच्छी है। बाकी जैसे लोगों को अभी पिछले 1-2 साल में जो मुल्क में सिनेरियो चले हैं डेवलपर्स के, जिस तरीके से कुछ लोग भागे हैं, बिल्डर्स भागे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को अब क्लैरिटी आ गई है कि हमने किस डेवलपर में के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है, किस डेवलपर या किस ब्रांड के पास जाके हमने रहना है, ताकि कल को हमें कोई इशू ना हो। उसमें रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं, रजिस्टर्ड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, अथॉरिटीज हैं, और वो अच्छी है लोगों के लिए। अच्छा, ये आपने तज़किरा किया और बड़ा एक अहम नुक्ता है जिस पर काफ़ी लोगों की तवज्जो मरकूज रहती है और काफ़ी लोग कंफ्यूज भी रहते हैं, क्योंकि रिसेंटली कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में ऐसी सोसाइटीज़ भी थी जिन पर थोड़ा इशू बना, जो थोड़ी मुतनाज़ी भी होगी, पर थोड़ा लोगों का ट्रस्ट रियल एस्टेट इंडस्ट्री से थोड़ा हटा। बट ऐसी मार्गला एनक्लेव जैसी और डीएचए के जैसे कि आपने नाम लिया, दीगर और सोसाइटीज़ है जहाँ पर काफ़ी एक काबिल एतमाद सी सूरत हाल है और उसकी वजह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में दोबारा से लोगों का एतमाद बहाल हुआ है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी रिलायबल इफ वी टॉकिंग अबाउट मार्गला एनक्लेव। किसी भी सोसाइटी का उसकी खामी को, उसकी खूबी को डिफरेंशिएट करने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए, इन्हांस करने के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा कंपैरिजन करें। जब मवाजना होता है तो फिर ज़्यादा चीज़ें खुल के सामने आती हैं, थोड़े फ़ज़ाइल और मसाइब अगर बयान करें तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि आई सेक्टर से इसका कंपैरिजन किया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसका कंपैरिजन? अगर दीगर जो मौजूदा कैपिटल पाकिस्तान सोसाइटी उनके साथ किया जाए तो ये किस नहज में आपको दिख रही है? मैं नहीं समझता कि डीएचए और सीडीए का आप किसी भी सोसाइटी से कोई कंपैरिजन कर सकते हैं, कोई मैच ही नहीं है। बात ही खत्म कर दिया। बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। आप मतलब किसी के साथ मैच नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज डीएचए और सीडीए डिलीवर करेगा वो XYZ कोई भी सोसाइटी वो चीज सोच सकती है, डिलीवर नहीं कर सकती। आप 3D पे उसकी थीम तो दिखा सकते हैं, बट ऑन ग्राउंड रियलिटी में नहीं दे सकते आप वो चीजें। और जहां तक रही बात I8 से सीडीए, अच्छा इसको जो सबसे बड़ा एज है इस्लामाबाद का इशू ये है कि बहुत लिमिटेड एरिया है, जो लोकल पुराने इस्लामाबाद के लोग हैं वो मतलब F11 से आगे इस्लामाबाद नहीं समझते, उधर G13 से आगे इस्लामाबाद नहीं समझते, इस साइड पे G6 से आगे इस्लामाबाद नहीं समझते। तो ये वो और इनकी प्राइसेस को अगर आप कंपेयर करें तो मैं समझता हूँ मार्कला एनक्लेव आपको फ्री मिल रहा है। अगर आप I8 की प्राइसेस 500 गज की ले लें और G6 की 500 गज की प्राइस ले लें, F6 की प्राइस ले लें, F11 की ले लें, तो लुक्रेटिव प्राइस है, बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। तो वो लोगों के लिए एक अट्रैक्शन बना हुआ है। हमारे पास चूंकि वक्त काफ़ी महदूद रह चुका है, तो लिहाजा वक्त की नज़ाकत को मलूज़ खातर रखते हुए मुख्तसरन कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूँ। इट्स रैपिड फायर सेगमेंट ऑफ दिस पॉडकास्ट एपिसोड एंड we'll talk about this real estate market and Markla Enclave as well. चूँकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इससे जुड़ी हुई, इस मौजू से इससे मुतालिक बहुत सारे पहलू ऐसे जो कि पसंद करता है लोगों के जहनों में अक्सर होता है कि ऐसा होगा नहीं होगा, जाऊँ इस तरफ नहीं जाऊँ, कदम रुक जाते हैं। बात सफा कुछ लोग मिसगाइड कर रहे होते हैं, कुछ लोग कह रहे होते हैं कि मोटिवेट कर रहे होते हैं कि जाओ। वेल ओवरऑल पाकिस्तान को कैलकुलेट करते हुए, उसका अहाता करते हुए सबसे बेस्ट सिटी फॉर इन्वेस्टमेंट कौन सा समझता है? इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि इस्लामाबाद हर बिजनेसमैन का, हर ब्यूरोक्रेट का, हर आम आदमी का ड्रीम है। इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद से बेहतर आप पूरे कराची क्लेम करता है कि वो पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू जनरेट करता है, बट अगर आप कराची की जो बेस्ट लोकेशन की प्रॉपर्टी की प्राइस ले लें और इस्लामाबाद की ले लें, ये कोई मैच नहीं है। जो इस्लामाबाद की रियल एस्टेट की मार्केट की प्राइसेस हैं वो तो बहुत अच्छी है। और चूँकि कैपिटल भी है, वफाकी हुकूमत भी है, पूरा मुल्क यहाँ से चल रहा है, और फिर साथ ही साथ थर्ड मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड भी है, सो ऑब्वियसली इससे बेस्ट कोई प्लान बहुत अच्छा है। एनवायरनमेंट
प्लान बहुत अच्छा होगा। हाँ एग्जैक्टली। एक रेड फ्लैग जो किसी भी रियल एस्टेट जो है इसको अगर इग्नोर करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि मैंने अभी जैसे इस क्वेश्चन का तो जवाब मैंने दे दिया आपको कि आप ऑलरेडी एक लाइन डिफाइन कर चुके हैं कि आपने किस ब्रांड के साथ काम करना है। लोगों ने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करनी है तो आपको अच्छे ब्रांड के साथ चलना है। और मार्गरेट एनक्लेव की स्पेसिफिकली बात करें तो बेस्ट लो प्राइस इस वक्त उसकी जो पेमेंट प्लान है उसको मद्देनजर रखते हुए बाकी तमाम तर सोसाइटीज को देखते हुए क्या समझ रहे हैं किस लेवल पर मौजूद है? अच्छा, इसकी जो सराउंडिंग में जो सोसाइटीज है ना उनके साथ इस वजह से भी मैंने जैसे पहले कहा कि कोई कंपैरिजन नहीं है, वो डिलीवर कर चुके हैं। उन्होंने जो चीज बना के देनी थी ना वो बना के दे चुके हैं, आपके लिए विजिबल है। डीएचए जो बना के देगा उसको शायद 6 माह या 1 साल के बाद आपके लिए विजिबल होगा। जर्नल जो वहां पे डेवलपमेंट हो रही है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, पॉलिटिकल गार्डन है और मतलब जिस ऐसी चीजें हैं जो कि मतलब साइट पे भी अवेलेबल हैं, आप उनको जब देखेंगे तो आपको खुद आइडिया होगा कि वो बिल बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक है। एंड इफ वी कंपेयर डीएचए विद सीडीए देन किसको चूज करने वाले हैं? डीएचए इसमें मैंने तो आपको पहले कह दिया। और डीएचए में मजीद हम इन डेप्थ जाते हैं तो डीएचए का कौन सा फेज सबसे बेस्ट आपको? तो अगर आपने कंपैरिजन करना है डीएचए फेज 2 देखिए, इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान में जब रियल एस्टेट का रिसेशन रहा है तो डीएचए फेज 2 की प्राइस में 1 रुपए का फर्क नहीं आया। मैं मेंशन नहीं करना चाहता, आप ये कह सकते हैं 10% से लेके 100% तक प्राइसेस ड्रॉप हुई पूरे पाकिस्तान में जब रियल एस्टेट का रिसेशन था। सीडीए और डीएचए में से आपने डीएचए चूज किया। डीएचए के फेज की जब मैंने बात की तो आपने कहा कि डीएचए फेज 2 की तर्ज का मजीद कोई प्रोजेक्ट इन फ्यूचर मुस्तकबिल करीब या मुस्तकबिल बईद में आ सकता है या आने वाला है, इन्वेस्टर्स के लिए इंफॉर्मेशन जरा हो जाए। नहीं, ऑलरेडी तो डीएचए फेज 2 के बाद 3, 4 नहीं, उसी तर्ज का, उसी मयार का, उसी मयार की। देखिए डीएचए ने तो अपने लेवल स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए, और मैं आपको इसका एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि आपका टाइम के साथ हर फेज में पुराने फेज से ज्यादा प्राइस ऐड ऑन होती है। क्योंकि एक घर आप अगर नोट करें, आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक घर 10 साल पुराना है और एक आप आज बना रहे हैं तो उसके अंदर जो चीजें आप फिक्स करेंगे वो डिफरेंट होंगी। तो अब जो अगले आने वाले फेजेस हैं या जो ऑलरेडी काम हो रहा है जिन पे, तो वो बेहतर डेवलप भी हो रहे हैं। अगर आप इन दी लमसम अगर आप देखें तो अगर पूरा फेज या एक सेक्टर नया जो आएगा वो मार्गला एनक्लेव होगा, जो आई ओपनिंग होगा सबके लिए। ठीक है। अच्छा ऐसा मलिक साहब, ओवरसीज पाकिस्तान के बड़ा रोल अहम होता है हमारी मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के वजह से, और एज इन्वेस्टर वो बड़ा इन्वॉल्व होते हैं इन चीज़ों में। ओवरसीज के लिए सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट इस वक्त करंटली कौन सा देख रहे हैं? अप्रॉक्सीमेटली 12 मिलियन के करीब हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, और जैसे मैंने कहा ना कि हर पाकिस्तानी का ड्रीम है इस्लामाबाद, तो उनका भी इस्लामाबाद ड्रीम है। इसमें सिर्फ एक थोड़ा सा छोटा सा इशू है कि अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा इनको फैसिलिटेट करे, जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन है नॉन रेजिडेंट के ऊपर और जो उसका प्रोसेस है, अगर उसको प्राइम मिनिस्टर साहब अगर किसी तरीके से अवॉइड कर सके, जो कि पॉसिबल है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ नहीं हम मांग रहे, पर उसका मैकेनिज्म सिंप्लीफाई हो जाए, अप्रूवलों के चक्कर में ना पड़े, तो मैं समझता हूँ जितनी इन्वेस्टमेंट अब आ रही है वो उससे डबल हो सकती है। चले, मोहम्मद एहसन मलिक साहब रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपर्ट। एहसन मलिक साहब बड़े एहसन तरीके से इस इंडस्ट्री पर खूबसूरती से बात कर रहे थे, बड़े बेहतरीन तरीके से उन्होंने तमाम चीज़ों को वाज़ेह किया। और ऑब्वियसली मार्गला इनक्लेव जैसा ये प्रोजेक्ट जो कि कैपिटल पाकिस्तान में एक बेहतरीन इजाफे की सूरत में इस वक्त ज़ाहिर हुआ है और इन्वेस्टर्स के लिए इन फ्यूचर गारंटी के साथ आपको प्रॉफिट देने वाला है। सो आइए इन्वेस्ट कीजिए और अपने प्रॉफिट इन फ्यूचर को कंफर्म कर लीजिए। आज के पॉडकास्ट यहीं पर तमाम करेंगे। बहुत शुक्रिया।